Market Mantra. Market Mantra. Market Mantra. Market Mantra. Market Mantra. Market Mantra. Good evening and welcome to this Monday edition of Market Mantra, the program in which we give you a complete update on the economic news of the day. And today being Monday, we'll also be taking calls from you on any queries that you may have on economic, business and stock market news. But please do remember that we don't address company-specific queries. You could reach us on 2331 4444 or 2342 1050 and 2331 0464. I am Niharika Bhuvania with my co-anchor in Hindi, Subodh Mishra. धन्यवाद निहारिका और नमस्कार श्रोताओं। कारोबारी खबरों के साथ मार्केट मंत्र हाजिर है। आज सोमवार है और आज हम कारोबारी खबरों के साथ आपके प्रश्नों को भी कार्यक्रम में शामिल करेंगे। व्यापार, अर्थव्यवस्था और शेयर बाजार से जुड़ा कोई भी प्रश्न पूछने के लिए आप इन नंबरों पर हमें फोन कर सकते हैं। 2331 4444, 2342 1050 और 2331 0464। इन नंबरों से पहले दिल्ली का एसटीडी कोड 011 भी डायल करें, लेकिन याद रखें कि हम किसी खास शेयर या कंपनी से जुड़े सवालों के जवाब नहीं दे पाएंगे। प्रश्नों के उत्तर देने और खबरों पर चर्चा के लिए आज स्टूडियो में हमारे साथ हैं आर्थिक मामलों के विशेषज्ञ राजीव रंजन। राजीव, मार्केट मंत्र में आपका स्वागत है। नमस्कार। पहले हेडलाइंस के साथ निहारिका। Benchmark domestic indices close on a bullish note. Sensex soars over 600 points. Nifty settles at 26,172. India and New Zealand announce free trade agreement. Prime Minister Narendra Modi hails the deal, says both countries set to scale new heights. And global crude oil prices surge around 2%. शेयर बाजार में आज तेजी रही। सेंसेक्स 600 अंक से ज्यादा बढ़ा। निफ्टी 26,172 पर पहुंचा। भारत और न्यूजीलैंड ने मुक्त व्यापार समझौते की घोषणा की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने समझौते की तारीफ करते हुए कहा कि दोनों देश नई ऊंचाइयों पर पहुंचेंगे और कच्चे तेल की वैश्विक कीमतों में लगभग 2% का उछाल। And before we move ahead, Subodh, I think we should also let our listeners know that the views and opinions expressed by the experts in this program are their own and not of Akashvani. Akashvani advises its listeners to do their own research or consult a registered professional before taking any investment decision. And we further advise all listeners to exercise due diligence and rely on their own judgment for taking any financial decision. जी, और निहारिका, अब खबरों का सिलसिला शुरू करते हैं। देश के शेयर बाजारों के प्रमुख सूचकांक सेंसेक्स और निफ्टी सप्ताह के पहले कारोबारी दिन आज काफी बढ़त के साथ बंद हुए। आज कारोबार की शुरुआत से ही तेजी बनी हुई थी और एशियाई बाजारों की तेजी से सकारात्मक रुख कायम रहा। आज सेंसेक्स 638 अंक यानी 0.75% बढ़कर 85,567 पर बंद हुआ, जबकि निफ्टी 206 अंक ऊपर 26,172 पर आ गया। बीएसई मिड कैप इंडेक्स में 0.9% और स्मॉल कैप इंडेक्स में 1.1% की तेजी देखी गई। Riding the Santa rally on Dalal Street, benchmark domestic equity indices, the Sensex and the Nifty, ended the first trading day of the week on a bullish note. Both indices opened higher today and continued to move upward throughout the session, buoyed by positive cues from Asian markets. The Sensex surged 638 points or 0.75% to close at 85,567, while the Nifty added 206 points or 0.79% to settle at 26,172. The broader market indices at the Bombay Stock Exchange also advanced, with the mid-cap index gaining nearly 0.9% and the small-cap index rising over 1.1%.
और सेंसेक्स में शामिल 30 में से 25 कंपनियों के शेयर आज फायदे के साथ बंद हुए। सबसे ज्यादा बढ़ने वाले शेयरों पर नजर डालें। ट्रेंट लिमिटेड में लगभग 3.6%, इन्फोसिस में 3.1% के आसपास और भारतीय एयरटेल में 2.3% से ज्यादा की बढ़त देखी गई। सबसे ज्यादा गिरने वाले शेयरों में एसबीआई में 0.6% और कोटक बैंक में 0.4% की गिरावट रही। लार्सन एंड टुब्रो में भी हल्की गिरावट देखी गई। And with this, I think, Subodh, we should also talk about the sectoral indices. So across the sectoral indices at the BSE, all 22 sectors remained in positive territory, except for consumer durables, which fell by 0.1%. Among the top gainers, IT climbed almost 2%, focused IT added over 1.7%, and capital goods advanced over 1.6%. The overall market breadth at the BSE was positive as shares of 2,794 companies advanced, 1,515 declined and 192 remained unchanged. जी, और रुपए का हाल देखें। अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में रुपया आज डॉलर के मुकाबले 36 पैसे गिरकर 89 रुपए 65 पैसे प्रति डॉलर पर बंद हुआ। डॉलर इंडेक्स अंतर्दिवसीय कारोबार में 98.48 पर कारोबार कर रहा था। And with that, we also have our first caller online for the day. Amit joins us from Delhi. Good evening, Amit. Welcome to Market Mantra. गुड इवनिंग मैडम, और राजीव रंजन सर को भी नमस्कार है। सर, मेरा प्रश्न ये है कि अभी न्यूजीलैंड के साथ जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हुआ है, तो अभी हमारे लिए कौन कौन से बाजार मतलब प्रोडक्ट के लिए हमें फायदेमंद होगा हमारे देश के दृष्टिकोण से। और दूसरा चीज सर, कि जो सेमी कंडक्टर और मेड इन इंडिया चिप की बात हो रही थी, तो सेमी कंडक्टर में कुछ खास ऐसी इम्प्रूवमेंट लग नहीं रहे मेरे हिसाब से। आपको क्या लग रहा है सर? धन्यवाद जी। देखिए, जो अभी ट्रेड डील की बात हुई है, तो ये एक बहुत सकारात्मक शुरुआत दिख रही है। हालांकि अभी निगोशिएशंस कंप्लीट हुए हैं, अभी बाकायदा जो औपचारिक रूप से हस्ताक्षर होने होते हैं फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पे, उसमें अभी वो औपचारिकताएं अभी पूरी होनी बाकी हैं। लेकिन जब एक बार निगोशिएशंस कंप्लीट हो गई हैं, कंक्लूड हो गई हैं, तो एक तरह से हमने वो दरवाजा पार कर लिया है। अब इसके आगे की औपचारिकताएं ही हैं। उसमें कितना समय लगता है, 1-2 महीने या थोड़ा इससे ज़्यादा हो सकता है, लेकिन आशा करते हैं कि जल्दी पूरा हो जाएगा। और न्यूजीलैंड के साथ ये समझौता जो है, वो अगर आप अमेरिकी टैरिफ के संदर्भ में देखें तो काफ़ी महत्वपूर्ण है। इससे कई संकेत भी निकलते हैं, खासतौर पे जो न्यूजीलैंड के साथ जिन चीज़ों को एक्सक्लूड किया गया है, खासतौर पे जो कृषि संबंधी उत्पाद हैं, जिसमें डेयरी उत्पाद हैं, चीनी है, इस तरह की तमाम चीज़ें हैं जो इस समझौते में एक्सक्लूड की गई हैं। यानी उनका ड्यूटी फ्री इंपोर्ट न्यूजीलैंड से नहीं होगा भारत में, जबकि भारत की जो भी ट्रेड लाइन्स है वो 100% इस ट्रेड टैरिफ में, इस ट्रेड डील में शामिल की गई हैं। तो ये एक अच्छा समझौता है जिसमें दोनों देशों के जो आयात निर्यात और आपसी व्यापारिक संबंध हैं वो काफ़ी बढ़ेंगे, और इसके ज़रिए हमें एक तरह से यूरोप के अंदर एक दरवाज़ा भी मिलेगा। हालांकि यूरोपियन यूनियन के साथ भी हमारी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की बातचीत काफ़ी आगे बढ़ चुकी है, और वो अगले साल के शुरुआती महीनों में कभी भी वो बातचीत पूरी हो सकती है, कंक्लूड हो सकती है। तो जितने भी अलग अलग देशों के साथ या अलग अलग समूहों के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स हैं, उन पर काफ़ी सक्रियता से काम हो रहा है, और ये अच्छा है। विपरीत परिस्थितियां अमेरिका के संदर्भ में जो हैं, उनका मुकाबला करने में इनसे काफ़ी मदद मिलेगी। जी, इन्होंने और सेमीकंडक्टर और चिप के मामले में भारत में हो रही प्रगति पर भी कुछ पूछा था। मुझे लगता है इनका ध्यान इस बात पर है कि सेमीकंडक्टर के नाम पर शेयर बाजार में कई सारी कहानियां चल रही हैं, और वहां पर मैं इन्हें सतर्क करना चाहूंगा कि सिर्फ कहानियों पे ना जाएं। जहां पे कुछ ठोस होता हुआ दिखे, सिर्फ उनकी बात करें, सिर्फ उन पे ध्यान दें। नाम तो लेना मुश्किल है यहाँ पे इस कार्यक्रम में, लेकिन अगर आप सेमीकंडक्टर से जुड़ी हुई कहानियां शेयर बाजार में खोज रहे हैं, तो सिर्फ कहानियों को न सुने, ठोस चीजें देखें, कोई कंपनी क्या कर रही है, क्या नहीं कर रही है, उसके हिसाब से निवेश का फैसला लें। कई बार कहानियों के नाम पे आपके हाथ में कुछ नहीं आता। जी, धरातल पर रहें। जी, और अगले कॉलर है दिल्ली से सिद्धार्थ। स्वागत है आपका, सवाल पूछें। थैंक यू सर। सर, मेरा क्वेश्चन जो नई वाली टैक्स रेजीम है उसके ऊपर है। जी सर, मेरे को ये पूछना था कि अगर हमारे पास मान लीजिए कि 2 प्रॉपर्टी हो और उस पे जो है हमारी किस्त चल रही हो, तो उसका जो ब्याज वाला भाग है किस्त का,
वो सर अगर जो है वो लगभग बराबर है किराए के, तो हमारा पूरा किराया टैक्स फ्री हो जाएगा सर इन दोनों प्रॉपर्टीज से। जी, आपका सवाल थोड़ा तकनीकी है और इसमें मैं आपको सलाह दूंगा किसी चार्टर्ड अकाउंटेंट के साथ आप बैठ करके उचित परामर्श करें। इस सवाल का जवाब रेडियो पर बहुत 1-2 मिनट में इसकी चर्चा करना थोड़ा मुश्किल होगा। Or our next caller calls us from Maharashtra. Vedanath is with us. Good evening and welcome to Market Mantra. Please go ahead with your question. नमस्कार मार्केट मंत्रा टीम, मैं वैद्यनाथ महाराष्ट्र से बोल रहा हूँ। मेरा क्वेश्चन ये है कि सिक्योरिटी मार्केट कोड बिल 2025 पार्लियामेंट में पेश हुआ था फाइनेंस मिनिस्टर द्वारा, तो क्या जरूरत पड़ी और क्या नए बदलाव होने जा रहे हैं इसमें? धन्यवाद। जी, अभी शेयर बाजार में सेबी ने भी जो कदम उठाए हैं और उसके बाद ये जो विधेयक पेश किया गया है, दरअसल शेयर बाजार में पिछले अगर आप 10-15 सालों के बीच में देखेंगे तो काफ़ी तरह के बदलाव हुए हैं, जबकि जो पुराने नियम कानून हैं उनमें कई सारे पुरानी चीज़ें जैसे कागजी शेयरों वगैरह का भी जिक्र रहता है, या ब्रोकर्स की किस तरह की देनदारियां होंगी या किस तरह के उनके उत्तरदायित्व होंगे, उन सब चीज़ों को नए सिरे से रीडिफाइन किया गया। मुख्य रूप से इसका उद्देश्य जो है वो कानूनी प्रावधानों को सरल करना। जैसे आप को ध्यान होगा कि इस सरकार में हमने बहुत सारे अनावश्यक कानूनों को रद्द होते हुए, समाप्त किए जाते हुए, रिपील्ड करते हुए देखा है। तो जो कानून है, इससे पहले हमने देखा कि भारतीय न्याय संहिता जो आईपीसी पहले थी उसको रीराइट किया गया। तो ये एक तरह से आप समझे कि कानूनों को सरल बनाने के लिए दोबारा लिखा जा रहा है, पुनर्लिखित किया जा रहा है। जी, निहारिका जी, हाँ, कुछ शेयर बाजार पर आप कुछ पूछना चाहती थी शायद। जी, I've been wanting to ask this ever since the start of the program, but because today is a caller special, so that was our priority. I would just like to know that last week we ended on losses. The entire week was slightly down, and one reason could be FII outflows. But today we see the markets, really upbeat, and we see that they ended on a bullish note. So how do you anticipate this week to be, considering it's also Christmas, so markets are closed for one day? जी, आपने क्रिसमस का जिक्र किया और लगभग ये हर साल ही देखा जाता है कि एक सांता क्लॉज रैली, सेंटा रैली, इस तरह से बाजार में एक चीज चलती है। कभी कभी अपवाद में ना भी चले, लेकिन आमतौर पे लोग कहते हैं कि हाँ, साल के अंत में थोड़ा सा खुशनुमा माहौल में बाजार रहता है। और दूसरे, चूंकि FIIs का आपने बिकवाली का जिक्र किया, पिछले कुछ समय से उनकी ओर से बिकवाली का दबाव लगातार रहा है और उसका एक स्वाभाविक असर है बाजार पर, जिसके चलते हम बहुत बढ़ नहीं पा रहे, हालांकि गिर भी नहीं रहे, क्योंकि घरेलू खरीदारी अच्छी है। डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स जो हैं वो लगातार खरीदारी कर रहे हैं और उनके पैसों के दम पर ही जो घरेलू वित्तीय संस्थाएं हैं, DIIs जो हम कहते हैं, उनकी खरीदारी लगातार रहती है। तो इसके चलते बाजार गिर भी नहीं रहा, लेकिन FII बिकवाली रहने के चलते बाजार को ज्यादा ऊपर जाने में मुश्किल हो रही है। इसीलिए हमने देखा निफ्टी बार बार 26,000 के थोड़ा ऊपर थोड़ा नीचे ये झूलता रहा है। आज एक बार फिर से 26,000 के ऊपर निफ्टी लौटा है, तो ये एक सकारात्मक उम्मीद कर सकते हैं। लेकिन हाँ, अभी थोड़ा सा देखना पड़ेगा अगले कुछ दिनों के अंदर इसका व्यवहार कैसा रहता है। फिलहाल अभी आप ये समझ लीजिए कि सेंटा आए हैं बाजार में। जी, so there is a consistent sentiment across the market, neither और too साथ high में nor too low. पिछले 1-2 दिनों में FIIs का आंकड़ा भी थोड़ा सा बीच में सकारात्मक हुआ है। अब ये टिकता है या नहीं टिकता है, या वो ईयर एंड वाली उनकी कहानी है। कई बार लोग ये भी कहते हैं कि जो FIIs हैं वो अपने उनके जो फंड मैनेजर हैं वो फाइनेंशियल ईयर उनका तो कैलेंडर ईयर वो चलते हैं, तो वो अपने रिटर्न्स दिखाने के लिए साल के अंत में थोड़ा अच्छा आंकड़ा रखना चाहते हैं। ये सब बातें भी चलती रहती हैं। तो बाजार में बहुत सारी चीजें एक साथ चलती रहती हैं, कोई एक कारण नहीं होता। जी, अब वक्त मिलेगा तो आगे चर्चा जारी रखेंगे, लेकिन अभी चलते हैं कॉलर के पास। दिल्ली से प्रकाश हमारे साथ है। प्रकाश, स्वागत है आपका, सवाल पूछें। हाँ जी, मार्केट मंत्रा टीम को मेरा नमस्कार सर। नमस्कार सर, मैं ये जानना चाहता हूँ, मेरी वाइफ के नाम फिजिकल मोड में शेयर पड़े हैं, उनका डीमेट अकाउंट नहीं, ट्रांसफर नहीं करा है। मेरा एक अपना डीमेट अकाउंट है, क्या वो शेयर उसमें ट्रांसफर हो सकते हैं? प्रकाश जी, आपके लिए सबसे आसान अच्छा रहेगा और जल्दी कर लीजिए, क्योंकि अब फिजिकल शेयरों का समय जो है वो बीत चुका है और कहीं ऐसा ना हो कि सारी समय सीमाएं खत्म हो जाएं। अभी एक्सटेंडेड समय सीमा चल रही है। आप जल्दी से इस काम को निपटाइए, अपनी पत्नी के नाम पर एक डीमैट अकाउंट खुलवाइए और वो उनका अकाउंट को आप चालू कराने के बाद फिर अपने उनके इस कागजी शेयर को जो है आप डीमैट फॉर्मेट में तब्दील करवाएं। ये जल्दी करवा लीजिए, मेरी यही सलाह रहेगी।
And let's now take on call Tinku from Bihar. Good evening. अपना सवाल पूछिए. सर, मैं पूछना चाहते हैं जो अटल पेंशन योजना है, जैसे अभी 1000 रुपया का मंथली जमा करते हैं और ये जैसे मेरा 41 एज हुआ और ये 60 साल के बाद 20 साल 19 साल के बाद क्या 1000 का वैल्यू अच्छा रहेगा या ना रहेगा, इससे जानकारी चाहिए. जी, अटल पेंशन योजना में अगर आप छोटे भी अमाउंट के साथ शुरुआत कर रहे हैं तो उससे कोई बड़ी समस्या नहीं है. अगर आप 1000 रुपये तक का आप इसमें जमा करते हैं या आपको आगे चल करके जब 60 वर्ष पूरे होने के बाद आपको जो पेंशन मिलेगी वो निश्चित रूप से आप आज की तारीख में सोच सकते हैं कि हाँ शायद उस समय यहाँ से अभी आप 41 वर्ष के हैं, 60 साल 19 साल बाद आपके लिए उस राशि का अगर वो आपको 1000 या 5000 रुपये के आसपास की मासिक पेंशन उस योजना में मिलती है तो उसकी कीमत कितनी रहेगी. आपका ये सवाल, आपकी ये चिंता बिल्कुल जायज़ है, लेकिन आप ऐसा ना सोचें कि आपको सिर्फ इसी एक योजना के भरोसे अपना बुढ़ापा काटना है. ये आपके लिए एक सहारा होगा, लेकिन आपको साथ में अपनी कमाई जो कर रहे हैं उसमें लगातार नियमित रूप से बचत करें. उसके लिए आप दूसरी जगहों पे साथ साथ निवेश करते रहें. आप अपनी आमदनी का एक अच्छा हिस्सा जो है वो बचा करके रखें और उनको ठीक तरह से अच्छे तरीके से निवेश करें. जाहिर है कि अटल पेंशन योजना अकेले आपके लिए शायद उतनी पर्याप्त नहीं होगी, लेकिन इसको आप एक सहायक योजना के रूप में रखें. ये आपकी आय का उस समय मुख्य स्रोत शायद ना हो, लेकिन सहायक ज़रूर रहेगा. उससे आपको अच्छी मदद मिलेगी. जी, और देखें आज एशिया के बाजारों का हाल क्या रहा है. सभी प्रमुख एशियाई शेयर बाजारों में आज तेजी बनी रही. दक्षिण कोरिया का कोस्पी 2.1% से ज्यादा बढ़ा. जापान के निक्केई में 1.8%. सिंगापुर के स्ट्रेट्स टाइम्स इंडेक्स में 0.9%. चीन के शंघाई कंपोजिट सूचकांक में 0.7% और हांगकांग के हैंगसेंग में 0.4% की बढ़त रही. समाचार लिखे जाने तक यूरोप के प्रमुख बाजारों में मिलाजुला रुख बना हुआ है. लंदन का फुटसी 0.5% नीचे चल रहा था और फ्रांस के कैक में 0.4% की गिरावट थी. जर्मनी का डैक्स 0.3% ऊपर कारोबार कर रहा था. तो ये जो हाल देख रहे हैं हम एशियन मार्केट का, अगर देखें हम तो आज काफ़ी अच्छी तेज़ी दिखी. सुबह से बहुत उत्साह बना हुआ था और हम कह रहे हैं, हमने कहा भी कि इसका क्यों लिया है हमारे मार्केट ने. इसके पीछे थोड़ा सा कुछ दिन पहले की जो खबर थी उस पर गौर करें कि जापान ने 3 दशकों के बाद लगभग अपने रेट बढ़ाए हैं. जी, पहली बाकी जगह कमी का दौर चल रहा है, वहां पर बढ़ाया. खैर, लेकिन उनका इतना कम था तो उनको कुछ न कुछ तो करना था. जी. लेकिन इसका असर जो क्या हम आज एशिया के बाजारों पर उसका असर देख रहे हैं या कुछ और भी फैक्टर्स हैं? जी, देखिए, एक सेंटिमेंटल इम्पैक्ट होता है, लेकिन वो कोई टिकाऊ असर नहीं है. अंततः बाजार आपका क्या देखेगा, वो ये देखेगा कि हमारी कंपनियां कमा कितना रही हैं, अर्निंग्स, हमारे यहाँ की अपनी अर्निंग्स क्या है. बाकी सारे फैक्टर्स आपको साइकोलॉजिकल रिलीफ देते हैं या थोड़ा बहुत सेंटिमेंटल एक साथ साथ. जैसे कई बार पहले ये लगता था कि अगर अमेरिकी बाजार अच्छे बंद हुए हैं तो फिर हम भी अच्छा करेंगे, लेकिन उतना कोई कोरिलेशन नहीं है. फंडामेंटल चीज़ है कि आपकी कंपनियां कमा कितना रही हैं, अर्निंग ग्रोथ कितनी है. And with that, we have our next caller, Jay Kumar from Ghaziabad. Good evening, Jay, and welcome to Market Mantra. Good evening to all my Market Mantra team. Good evening. Good evening. Please go ahead with your question. Okay. मेरे पास 15 साल पहले के शेयर्स पड़े, फिजिकल शेयर पड़े हुए हैं जो पार्टली पेड हैं. क्या कोई पॉसिबिलिटी है जो मैं फुल्ली पे करके उसको डीमैट में कन्वर्ट करा सकूं? जी, वो लिस्टेड कंपनी है या अनलिस्टेड कंपनी है? लिस्टेड कंपनी है. जी, तो आप कंपनी के रजिस्ट्रार से संपर्क करें. वो आपको इस बारे में बेहतर बता पाएंगे कि क्या अब उन्हें वापस फुली पेड करके उनका डीमैट कन्वर्जन पॉसिबल है या नहीं है. कंपनी के रजिस्ट्रार जो हैं, आप शेयर बाजार में किसी भी साइट पे, बीएसई की साइट पे ही जाकर के उस कंपनी के उस शेयर के रजिस्ट्रार के बारे में जानकारी लें. आपको मिल जाएगी बीएसई की साइट पे या एनईसी की साइट पे. वहाँ पर आप रजिस्ट्रार का नंबर वगैरह, ईमेल वगैरह नोट कर लें, उनसे संपर्क करें. वो आपको बता पाएंगे कि हाँ, ये जो पार्टली पेड शेयर्स हैं उनको आप फुली पेड शेयर्स में कन्वर्ट अब कर सकते हैं या वो समय सीमा खत्म हो गई.
And with that, Subodh, I think let's also take a look at one of the highlights for today, which is the free trade agreement with New Zealand. India and New Zealand today announced the successful conclusion of landmark free trade agreement negotiations, marking a major economic and strategic milestone in India's engagement with the Indo-Pacific region. In a social media post, Prime Minister Modi hailed the agreement, saying the India-New Zealand partnership is set to scale new heights. Our correspondent brings you a detailed report on this. The free trade agreement stands out as one of India's fastest concluded FTAs aligned with the national vision of Viksit Bharat 2047. The negotiations were formally initiated on 16th March this year. The FTA establishes a high-quality economic partnership that promotes employment, drives trade, and investment-led growth. It will also foster innovation for agriculture productivity and enhances MSME participation to strengthen long-term economic resilience. The free trade agreement will significantly strengthen the investment partnership between the two countries. New Zealand has committed to facilitate investments of $20 billion into India over the next 15 years. The FTA will open skilled employment pathways through a new temporary employment entry visa for Indian professionals in skilled occupations with a quota of 5,000 visas and a stay of up to 3 years. The agreement will ensure zero duty on 100% of India's exports. It will benefit farmers, MSMEs, workers, artisans, women-led enterprises, and youth while providing immense opportunities for labor-intensive sectors such as textiles, apparel, leather, and footwear. The FTA promotes India's Ayush systems internationally, encourages medical value travel, and positions India as a global wellness hub. The India-New Zealand agreement stands as a significant step in India's journey towards becoming a globally competitive, inclusive, and resilient economy under the vision of Viksit Bharat 2047. With Dipendra Kumar and Anupam Mishra, Sakleen Akhtar for Akashvani News, Delhi. Briefing media in New Delhi today, Union Commerce and Industry Minister Piyush Goyal said that the FTA reflects the growing strategic importance of India in world geopolitics. He noted that it is India's third FTA with Five Eyes nations, Australia, the UK, and now New Zealand, and the country is soon going to launch trade discussions with Canada. Mr. Goyal also said that India is at an advanced stage in discussions with the USA. This is the 7th free trade agreement, all of them with developed economies with significantly larger per capita incomes than India, demonstrating that we are expanding trade relations rapidly with countries who complement the Indian economy rather than compete with India. This FTA provides opportunities for all sections of our export community, opens up new doors for new exporters with new products wishing to diversify their export basket, and at the same time helps every region of the country, north, south, east, west, northeast, in different areas. Rajiv, this has been over the news all over today. And there are a few striking features. So, beginning with this agreement provides duty-free access for all Indian exports. And second, there are also provisions for temporary employment entry visa with a quota of 5,000 visas at any given time. And there are also provisions for entry and stay for students and youth, as well as study visas and work opportunities during studies. So, in a nutshell, how does it serve to benefit the common people? And there is also a heavy push to India's service sector, right? So your opinions on that? जी देखिए, हमारे सामने इस समय बहुत आवश्यक है कि जो कमी हमारे पास जो यूएस एक्सपोर्ट्स में हो रही है इस समय टैरिफ की वजह से, उसके लिए वैकल्पिक बाजार तलाशे जाएं और उसकी दिशा में काफ़ी तेजी से काम हो रहा है. ये ट्रेड एग्रीमेंट्स जो हो रहे हैं वो तो आगे बढ़ाएंगे ही हमारी निर्यात क्षमता को, लेकिन साथ में इसके अलावा भी अगर आप देखें तो वैकल्पिक बाजारों को तलाशने की दिशा में काफ़ी ज़्यादा तेजी से काम हुआ है, प्रयास चल रहे हैं. और इसी का कारण है, यही वजह है कि अगर आप देखें तो जितनी आशंकाएं थी कि टैरिफ लगने के बाद, खासतौर पे 50% टैरिफ यूएस एक्सपोर्ट्स पर लगने के बाद हमारा एक्सपोर्ट काफ़ी कम हो सकता है, इस तरह की आशंकाएं थी, वो आशंकाएं उस तरह से नहीं सामने आई हैं, बल्कि एक तरह से हम काफ़ी नियंत्रित नुकसान कह सकते हैं इसको. नुकसान हुआ है, ऐसा नहीं है कि नहीं हुआ है, और नवंबर के आंकड़े तो सकारात्मक थे, हालांकि उसके पीछे बेस इफेक्ट भी था, लेकिन फिर भी
जो the impact has been lesser. बहुत सीमित मात्रा में असर हम आज की तारीख में कह सकते हैं यूएस टैरिफ का। ये सारे जितने जो बायलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट्स हो रहे हैं वो एक दीर्घकालिक उपाय के तौर पे भी मैं देख रहा हूं कि यूएस के साथ टैरिफ का मसला आज नहीं तो 1 महीने बाद, नहीं तो 2 महीने बाद, नहीं तो 3 महीने बाद सुलझ जाएगा, लेकिन ये एफटीए बना रहेगा। तो हमारे पास एक वैसी स्थिति की कल्पना कीजिए कि यूएस के साथ मुद्दा भी सुलझ गया, उनके साथ भी हमारा एफटीए हो गया और बाकी देशों के साथ भी है। तो ये हमारे लिए एक दीर्घकालिक रणनीति है और उसका एक काफी लंबे समय तक हमारे निर्यात को फायदा मिलेगा, हमारे व्यापार के लिए कुशन रहेगा। जी और अगले कॉलर के पास चलते हैं। दिल्ली से वीरेंद्र हमारे साथ हैं, स्वागत है आपका, सवाल पूछें। पूरी टीम को नमस्कार। नमस्कार। राजीव रंजन जी, एक थोड़ा प्रश्न हटकर है। इनफैक्ट जैसे हम लोग केस करते हैं या हमारा पैसा कहीं फंस जाता है तो हम रिकवरी सूट डालते हैं, उसके लिए 2%, 3% कोर्ट फीस होती है। कोई ऐसा प्रोविजन है जिससे कि जो ना दे पाए, सब कुछ लूट चुका हो उसका, वो ना दे पाए, उसका पैसा फंस गया है, तो किसी प्रोविजन के अंदर उसे फीस ना देनी पड़े और कोर्ट उसको अलाउ कर दे? जी, इस बारे में आपको किसी वकील से ही संपर्क करना पड़ेगा क्योंकि ये थोड़ा कानूनी मसला है। जी, अगली खबर पर चलते हैं। इस वर्ष नवंबर में भारत का बुनियादी ढांचा उत्पादन पिछले वर्ष की समान अवधि की तुलना में 1.8% बढ़ा है। इसमें 8 प्रमुख उद्योगों के संयुक्त सूचकांक से इसे मापा जाता है। अक्टूबर महीने में इसकी वृद्धि दर ऋणात्मक यानी -0.1% रही थी। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय द्वारा जारी किए गए तात्कालिक आंकड़ों के अनुसार सीमेंट, इस्पात, उर्वरक और कोयला सहित भारत के 4 प्रमुख क्षेत्रों में पिछले महीने वृद्धि दर्ज की गई। और जी अगले कॉलर गुरुग्राम से जुड़ गए हैं, उनसे बात करते हैं। नारायण, स्वागत है आपका, सवाल पूछें। Yeah, thank you very much for taking me in the call. Sir, despite of disclaimer, I should always or we should always trust your advice and everything. Just a quick question to you, sir. FDI in 100% allowed in the GIC, and despite of that, there was all insurance companies cripping on their profitability and net of loss. So, do you have any idea on that? Why they are cripping on it and why they are not encouraging this insurance to the Indian market? Sir? Thank you very much. जी, देखिए, जनरल इंश्योरेंस आसान व्यवसाय नहीं है, तो इसकी अपनी समस्याएं रहती हैं, लेकिन फिर भी अगर मैं पूरे बीमा उद्योग की बात करूं और खासतौर पे उसमें साधारण बीमा क्षेत्र जनरल इंश्योरेंस भी, तो इसकी संभावनाएं लंबे समय में अच्छी हैं। और अगर जो भारतीय कंपनियां हैं उनका कारोबार मुझे अच्छा मजबूत दिखता है क्योंकि उन्हें इस बाजार की अच्छी समझ है। साधारण बीमा में आप किसी बिजनेस के जोखिम को संभालने का दावा करते हैं, उसका वादा करते हैं। वो भारतीय व्यवसायों को समझना और उनके जोखिमों को समझना जो है वो भारतीय कंपनियों के लिए ज्यादा अनुकूल बैठता है। And with that, a quick look at global crude oil prices, which surged today after the US intercepted an oil tanker in international waters off the coast of Venezuela, and tensions in Russia's war against Ukraine remained high, with both developments raising fears of supply disruption. Brent crude was trading almost 2% up at $61 and 67 cents per barrel, while WTI crude was trading over 2% up at $57 and 68 cents per barrel when reports last came in. And in the Indian bullion market, 24-carat gold was trading over 1.4% up at 1,36,400 rupees per 10 grams. And silver was trading over 2.8% up at 2,13,880 rupees per kilogram a short while ago. जी, और राजीव कार्यक्रम में आने और श्रोताओं के सवालों के जवाब देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। And before we close, a quick reminder of the headlines for our listeners. Benchmark domestic indices close on a bullish note. Sensex soars over 600 points. Nifty settles at 26,172. India and New Zealand announce free trade agreement. Prime Minister Modi hails the deal. And global crude oil prices surge around 2%. With that, it's a wrap on today's edition of Market Mantra. We'll see you in the next one. Goodbye. इस कार्यक्रम में विशेषज्ञों द्वारा विचार उनके अपने हैं। आकाशवाणी अपने श्रोताओं को सलाह देता है कि निवेश का निर्णय करने से पहले स्वयं रिसर्च करें या किसी पंजीकृत सलाहकार से राय लें।
Market Mantra.